ساری براڈ ہے نا وہ میں نے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا, ڈاؤنلوڈ کر جو آپ والا حصہ ہے نا وہ نکال لینا. نہیں وہ جو اپلوڈ کی ہے وہ کس چینل پہ کس پہ یوٹیوب پہ وہ آپ کو میں نے ضیاء بھائی کو لنک بھیجا, انہوں نے آپ کو دیا نہیں لنک. نہیں چینل کا نام بتا دیں. اچھا ہو سکتا ہے ضیاء بھائی اس پہ وہ کریں, ہو سکتا ہے ضیاء بھائی وہ اپنے چینل پہ اس کو اپلوڈ کریں. میں نے ضیاء بھائی کو وہ بھیج دیا. ساحل بھائی میری بات سنیں, آپ مجھے لنک سینڈ کریں ابھی پلیز. تو آپ کو کیسے لنک سینڈ کروں, یہاں پہ شاید ٹک ٹاک پہ تو لنک نہیں آتا نا. چلا جاتا کاپی کر کے پیسٹ کرو. مفتی مبشر صاحب بھی تشریف لے. مبشر شاہ صاحب کدھر ہے وہ نیچے ان کی آئی ڈی تو آئی. وہ تو میں نے کال کیا اوپر نہیں آیا مفتی صاحب. اچھا میں آپ کو وہ میں نے ضیاء بھائی کو آج بھیج دیا تھا, لنک کی رات تھی اس وقت. جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. السلام علیکم استاد محترم میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں. آپ کی وجہ سے جیت گئی ہوں. ماشاءاللہ. یہ ساحل بھائی بیٹھے ہوئے ان سب سے پوچھنا اور لتن مارے توڑی میں نے بڑے لتن مارے قادیانی میرے کو ڈر گئے سارے ٹک ٹاک پہ. جی استاد محترم میں اجازت چاہوں گی. آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ کی محنت آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح گائیڈ کرتے اور میں خون چھڑنا رہی. مجھے کچھ ملے میں بات سے شکریہ ادا کر رہا ہوں. میرے دعا کرے لتر مارا. اچھا آمنہ سسٹر میں نے آپ کو لنک بھیج دیا. جی ٹھیک ہے استاد محترم اجازت ہے مجھے نیچے بیٹھ کر سنتی ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ جو مناظرہ ہوا ہے یہ ساحل بھائی مجھے بھی کوئی لنک سینڈ کرتا ہوا ہے. کون سا ہوا ہے؟ جی بالکل میں شادی آپ کو بھی کر دیتا ہوں. یہ آمنہ بیٹی کا مناظرہ ہوا جی ہے. بالکل شاہ صاحب جو ان کا مناظر ہے اس کے ساتھ ماشاءاللہ بولنے نہیں دیا. بیٹی نے ماشاءاللہ زبردست. یہ ہمارے الخاتم جو جامعہ ختم نبوت بنایا نا اس کی طالبہ ہیں. تو اس کو نا بڑا شوق ہے کیونکہ ہمارے جو کورسز ہیں وہ قابل دینو مذاہب کے. تو وہاں ڈیبیٹر بھی تیار ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو اس کو بھی اور دیگر کو بھی میں نے ابھی روکا ہوا ہے کہ مناظرہ ابھی نہیں کرنا. تو یہ کافی دنوں کی پیچھے چڑھی ہوئی ہیں. مجھے پتہ نہیں پھر یہ ویسے تو بغیر اجازت کے اس نے کسی مناظرہ یا مکالمہ کی ہے. ساحل بھائی کی براڈ پر ہی کیا. ضیاء بھائی کو دیکھ کر انہوں نے پھر اپنی براڈ کو ہی کیا. چلیں اللہ خیر کریں کیونکہ مکمل تیاری نہیں نا. سارے طلباء اور طالبات کو روکا ہوا ہے کہ کسی جگہ مکالمہ بھی نہیں کرنا. تو تاکہ پہلے کچھ علم آ جائے, نالج آ جائے, تربیت ہو جائے, تو پھر انشاءاللہ ایک دم جو ہے نا سارے یہ منظر عام پہ آئیں گے انشاءاللہ.
تو مجھے بھی سینڈ کرنا بھائی لنک، میں بھی دیکھنا میں واٹس ایپ کر دوں. جی بالکل. اچھا جی یہ نا اس کی اگر تھوڑی سی جھلک جو بات شروع ہوئی تھی وہ اگر آپ کوئی دوست علم میں عمل میں اضافہ آمین بھائی بہت اچھی ڈیبیٹ کرتے ہیں، سارے بہت اچھی ڈیبیٹ کرتے ہیں. سب جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے موضوع سمجھ میں نہیں تھا آپ کا، تو میں کال پہ آنا پڑے. نہیں بہت اچھا کیا آپ نے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آمین. قریمت لو باجی ہو تو معافی مانگ رہا تھا. کہہ رہا معاف کر پہلے ہی ڈر گئی. یہی تو بات ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے بھی ڈرتے ہیں تو ہم سے بھی ڈرتے ہیں. یہ ضیاء بھائی ہیں مفتی مبشر شاہ صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے اتنے مجاہدین تیار کی. ماشاء اللہ. ہاں ٹھیک ہو گیا کافی ہے اتنا. اور یہ نا مجھے سینڈ کریے گا تو وہ پھر تو کیونکہ ان طالبات کی ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی نظر رکھنا ہماری ڈیوٹی ہے. اور کہاں پر یہ خطا کرتے ہیں، کہاں پہ کیا ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں کہ ان کی تربیت کا یہ حصہ ہے. تو ہمارے تو اولین ترجیحات یہ ہیں کہ ایک اچھے ڈیبیٹرز تیار کیے جائیں جو اسلام مخالف جو لوگ ہیں اچھے طریقے سے علمی طور پہ جواب دے سکیں. مجھے لازمی چیک کروائیے. جی ماشاءاللہ. مفتی صاحب پریشان. بھائی میں نے آپ خان صاحب کے پاس میرا نمبر ہے. جی میرے پاس بھی ہے. اچھا جی کر دیں. نہیں کیا تو دوبارہ کر دیں، میں چیک کر لوں گا. ٹھیک ہے. یہ کرسٹو صاحب کون ہے؟ فاروق صاحب بھی کوئی نیچے آئے ہیں. یہ فاروق صاحب اپنے بھائی ہیں. اچھا جی ماشاء اللہ. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا اللہ کا کرم شکر. اچھا یہ خان صاحب یہ نمبر شاید نہیں ہے آپ کا، تو یہ بھی سیو کر لوں گی آپ کا ہی ہے نا خان صاحب. مفتی صاحب یہ بھی میری ٹھیک ہو گیا. نیچے زہریلا منڈا بیٹھا ہوا ہے. مفتی صاحب آپ تو یاد ہی کر اگر آپ کے پاس 5 منٹ ہو بھائیوں کو کسی مفتی صاحب کو جاتے چاہیے جب حوالہ پیش کیا جواب دے سکتے ہیں. جب دعائی کر رہے تھے کیا آپ آئے تھے. سمجھ نہیں آئی خان صاحب. مجھے دوبارہ ذرا کوئی شور تھا. آواز آ رہی ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہ مفتی صاحب آگے میں نے ایک حوالہ رکھا اور انہوں نے مجھے کہا میں نے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لے دیں. انہوں نے کہا یہ جو آپ کا حوالہ ہے یہ مفتی مبشر شاہ صاحب فتویٰ دے اور کسی کے بس کا کام نہیں. دعائی کر رہے تھے. اچھا آپ آ گئے. جی کون سا حوالہ؟ یہ ایک مفسر کہتا جی اگر پیٹ کی مرض میں آپ مبتلا ہو تو ڈرائیو کرو پڑھ نہیں سکتا تو آپ اپنا پیشاب پی سکتے ہیں.
नहीं वो पहले दिखाएंगे तो फिर ऐसे तो नहीं ना। वो सुनी सुनाई बात वैसे भी हुजूर अलैहिस्सलाम हदीस पाक है फरमाया कि किसी इंसान के लिए इतनी काफी है हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर। तो ना ही तो हम सुनी सुनाई बात लगा सकते हैं तो ना ही कोई पहले पढ़ेंगे देखेंगे उसका सियाक देखेंगे तहकीक करेंगे रिसर्च करेंगे फिर कुछ अर्थ करेंगे ना। ऐसे तो नहीं कोई चल भाई आपके पास वाला है ये वाला आप लगा सकते हैं मेरे फॉलोअर्स नहीं है इस आईडी पे। नहीं, एक मेरे मिनट पास मैं नहीं, मैं ट्रैक करूँ। और वैसे भी ये जो आप बात कर रहे हैं ना ये कोई मतलब मैं अपनी मेरे मौजू से तो हट के है क्योंकि मेरा जो मौजू है सोशल मीडिया के ऊपर वो है तकाबले दयानो मज़ाहब ना कि फिकही मामलात और हलालो हराम। ये असल में मौजू नहीं है मेरा क्योंकि इस मौजू का अगर दरवाजा खोला जाए तो फिर हम असल मौजू से हट जाएंगे। वो फिर सवाल जवाब की नशिस्तें होंगी फिर वो फतावा के मामलात आ जाएंगे वो फिर किसी और तरफ हम निकल जाएंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपने मौजू पर ही रहे हमारे आप दिखाइएगा ऐसा कर ले अभी आपने व्हाट्सएप के ऊपर ही मुझे मैसेज किया है हवाला भी सेंड करें वो मैं फिर देख असल किताब का स्कैन भी चाहिए और किताब का ओरिजिनल टाइटल दो स्कैन चाहिए। मिर्जा साहब का हवाला पेश करने लगे हैं हान भाई। पता नहीं जी ये अब बुखारी के अंदर से निकाल ले जाते मुफ्ती साहब का स्टूडेंट टाइप एक मिनट दोनों लगा। अच्छा चले जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों। वालेकुम सलाम जी ताइदार खत्म जिंदाबाद जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब खैरियत है आप ठीक हैं? मैंने देखा आप नीचे बैठ के सुन रहा था। बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं आप माशाल्लाह। मैं उधर बैठता रहता हूँ कासिम भाई की ब्राड पे आप जमील साहब की ब्राड पे जब भी आप माशाल्लाह आते हैं तो हाजिरी लगवाते हैं गाय बगाए जी इन कादियानी फितने को करने के लिए इंशाअल्लाह ताला आप जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपकी उम्र में इल्म में बरकत और हमारे लिए दुआओं का जरिया बने। जज़ाकल्लाह। अच्छा दोस्तों से गुजारिश करता हूँ सरे दस्त मुझे याद आ गया यूट्यूब के ऊपर चैनल है जिसका नाम है खत्म टाइम्स। अगर आप लोगों को नहीं पता दोस्तों को नहीं पता तो नाम याद कर टाइम्स। तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है। आप जिसने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ कर ले तो वो कर ले। अगला मैसेज ये है कि हम ये करते थे कि ये उसमें लंबी वीडियोस अपलोड करते थे क्योंकि मुकालमात होते हैं मुख्तलिफ के ऊपर या व्हाट्सएप की कॉल होती है या मतलब स्पेस कोई चली है ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर भी लाइव हमारे जो सेशन लंबी वीडियोस होती हैं घंटे की 2 घंटे की 3 घंटे की 3 घंटे की। तो बहुत से दोस्त मैसेज कर रहे थे कि जी कोई छोटे पॉइंट्स के वीडियोस भी आनी चाहिए।
تو ابھی ہم نے وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے. تو آج ہی سمجھ لے کہ چھوٹی ویڈیو سینڈ کی ہے 6 منٹ 43 سیکنڈ کی. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ روزانہ کی بیس ایک دو ویڈیو چھوٹے کلپس وہ آتے رہیں گے. تو آپ سب کا تعاون درکار ہے کہ ان ویڈیوز کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے. اور ویڈیو کو آپ لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں. یہ دو تین کام کریں کم از کم، کیونکہ آپ حضرات کے بڑے گروپوں کے اندر شامل ہیں. میں ذاتی طور پہ میں تو کسی گروپ میں رہتا نہیں. لوگ مجھے شامل کرتے ہی رہتے ہیں. تو میں ووٹ کر دیتا ہوں، لیفٹ کر دیتا ہوں، ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے. تو آپ حضرات اگر شامل ہیں گروپ میں، یہی لنک ان ویڈیوز کے پھر آپ ان گروپوں کے اندر ڈالیں. آپ کے رابطے کے اندر ان تک پہنچائیے. یہ آپ کی طرف سے ایک تبلیغ چلتی پھرتی تبلیغ ہوگی کہ کچھ کام ہم اپنے حصے کا ہم کر رہے ہیں. تو اپنے حصے کا آپ بھی کام کریں تعاون کریں. ٹھیک ہے جی. یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام جن دوستوں تک بھی جائے گا وہ اس پہ عمل کریں گے. اور اگر کوئی قادیانی ہے سن رہا ہے ابھی تو وہ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ڈیبیٹ کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. فار ایگزامپل یہ ایک ویڈیو 6 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. اس ویڈیو کے اندر ایک پوائنٹ اٹھایا گیا، ایک واقعے کے اوپر یہ ویڈیو بنائی ہے. اگر کسی قادیانی کو کوئی اعتراض ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ واقعہ غلط منسوب ہے، یہ بات غلط ہے، یہ مرزا قادیانی نے ایسے کیے ہی نہیں ہے، تو ہم مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہیں، مناظرے کے لیے بالکل ریڈی ہیں. یہ جو نیچے آ کے کمنٹ کر دینا او ہو مولوی جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط ہے. یہ تو بالکل غلط ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اوریجنل کتاب کا سکین دکھاتے ہیں. اور کتابیں بھی وہ والی کہ جو قادیانیوں کی ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، ان کے حوالے دکھاتے ہیں. بصورت دیگر اور کوئی حوالہ کبھی ہم نے دکھایا ہی نہیں ہے. ان کے گھر کا حوالہ دکھاتے ہیں. تو اتنی بڑی دلیل جب ہو، ثبوت ہو، تو پھر بھی کوئی انکار کرے تو پھر اس کی عقل پہ ماتم کر سکتے اور کیا کر سکتے. بھائی تیرے گھر کی بات ہے، تو اس کو بھی نہیں مان رہا، تو اب پھر ماننا تم نے کس کو ہے. مرزا غلام قادیانی یہاں چلتے میں پھر ایک حوالہ دکھانا چاہتا ہوں. میں حوالہ نکال لوں. مرزا قادیانی اپنی کتابوں کے بارے میں بہت زور دیتا تھا. وہ کہتا ہے میری کتابیں تو سب کچھ ہیں. وہ اپنی کتابوں کے متعلق یہاں تک وہ کہتا ہے کہ جناب میری وہ کتابیں ہیں کہ جن کو تمام مسلمان بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن میری ان کتابوں کو جو رنڈی کے بچے ذریت البغایا، وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. روحانی خزائن جلد 5 ہے، صفحہ 547 ہے. آئینہ کمالات اسلام ہے، عربی کے اندر وہ کہتا ہے تلکا کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودۃ وینتفع من معارفہا و یقبلونی و یصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا. وہ کہتا ہے میری یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو تمام مسلمان بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے معارف سے نفع اٹھاتے ہیں اور قبول کرتے ہیں اور میرے دعوے کی تصدیق کرتے ہیں، مگر جو رنڈیوں کے بچے ہیں نا، ذریۃ البغایا،
رنڈی کا بچہ، غلط عورتیں جو ہوتی ہیں، زن ہے فاحشہ. مرزا قادیانی نے خود یہ ذریات البغایا کا ترجمہ کیا ہے، زن ہے فاحشہ یعنی فاحشہ عورتوں کے اولاد. تو وہی جو پنجابی کے اندر یا اردو کے اندر ہم کہتے ہیں رنڈی کے بچے، یہ گالی ہے. یہ تو مرزا قادیانی کہتا ہے جو رنڈی کا بچہ ہے نا وہ میری کتابوں کو نہیں مانتا. اب دیکھ لیں کہ کون ہے دنیا کے اندر جو مرزا قادیانی کی کتابوں کو نہیں مانتا. ہاں جی، سب سے بڑے انکار کرنے والے یہ خود قادیانی. ہاں جی، جب مرزا قادیانی کی کتابوں کو پیش کریں تو آگے وہ نہیں مولوی صاحب نہیں، قرآن کھولو حدیث کھولو، قرآن کھولو حدیث کھولو. اب یہ ایک بات کر لیں، اس کا قرآن حدیث سے کیا تعلق ہے؟ یعنی مرزے کی کتابوں کی بات ہو رہی ہے، اب قرآن حدیث میں یہ کہیں ملے گا آپ کو؟ یا تو کوئی ایک قادیانی ہی ہمیں بتا دینا کہ قرآن اور حدیث میں فلاں جگہ ہے جی کہ جو مسیح موعود ہوگا اس کی کتابوں کو تمام مسلمان مانیں گے مگر جو رنڈیوں کے بچے ہوں گے وہ نہیں مانیں گے. تو ٹھیک ہے، پھر بھی بات کر لیتے ہیں. قرآن حدیث سے بات کرنی ہے، کرو، کھولو قرآن، کھولو حدیث، ہمیں دکھاؤ کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود کتابیں لکھے گا اور مسیح موعود کی کتابیں جو نہیں پڑھے گا تو وہ ذریات البغایا ہوگا، رنڈی کا بچہ ہوگا. قرآن حدیث سے بات کر لو، آجو کھولو. قادیانیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی ایک طرف ٹکتے نہیں ہیں، چھڑپیاں ماریں گے، چھڑپیاں، ایک پکڑائی دینی نہیں. خود قادیانی سے آپ کہیں کہ بھائی بتا کس موضوع پہ بات کرنی، اس سے لکھوا لیں، یقین مانیے 2 منٹ بھی وہ اس لکھوائے ہوئے موضوع کے اوپر بات ہی نہیں کرے گا. ساری دنیا بیٹھ کے سن رہی ہے، 100-200 بندہ بیٹھ کے سن رہے، اس نے مکر ہی جانا ہے. اس نے کہنا نہیں میرا یہ موضوع ہی نہیں تھا، میں نے یہ کب کہا تھا. چٹا کورا انکار، یہ قادیانیوں کا طریقہ واردات ہے. پکڑائی نہیں دیں، پکڑائی تو دیتے ہی نہیں ہے. ابا سامنے بیٹھا ہوگا اس کا انکار کر دیں گا، تو میرا پیو ہی نہیں. یہ وہ ہے کون؟ وقت آنے پہ یہ مرزا قادیانی کا جب انکار کر دیتے ہیں تو مرزے سے بڑا تو ان کا پیو کوئی نہیں ہے نا. یہ ایک بندہ مان ہی نہیں رہا اس کی کتابوں کو. جی ادھر تو یقین جانے میں استاد ہوں، میرے شاگرد ہیں، میرے شاگردوں کو میری کتابوں کے بارے، حالانکہ میں کوئی نبی نہیں، رسول نہیں، امام مہدی نہیں، کوئی اللہ کا ولی نہیں، کوئی بڑا، کوئی کچھ نہیں، ایک سمپل سا ایک استاد. تو میرے شاگردوں کی نگاہ میں میری کتابیں، استاد کی کتابیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. وہ ٹھوک وجا کے پیش کرتے ہیں یہ ہمارے استاد نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا. تو یہاں تو یہ معاملہ ہے. قادیانی عجیب سی قوم ہے خدا کی قسم، کو جس کو اپنا نبی رسول کہہ رہے ہیں اس کی کتابوں سے ان کو نفرت ہے. اور شاید ہی کوئی دنیا کا کوئی قادیانی ہو جس کے گھر میں مرزا قادیانی کی ساری کتابیں ہوں. سوال کر کے دیکھ لیں، قادیانی کے ساتھ کبھی مکالمہ ہو، آپ اس کو کہیں کہ فلاں کتاب لے کے آ، کوئی دکھا جائے تو مجھے بتائیے. پڑھنی تو بڑی دور کی بات ہے کہ پڑھی ہیں نہیں پڑھی، وہ بڑی دور کی بات ہے. یعنی موجود ہونا یہ نہ. آپ اندازہ کریں کہ میرے پاس کتابیں ہیں، ابھی بھی کچھ کتابیں کم ہیں، ساری کتابیں نہیں ہیں. کچھ کتابیں تو میں ان کے وہ ربوہ سے، وہ چشمے والا، شکورہ چشمے والا جو تھا اس سے لے کے آیا تھا، 15 سال پرانی بات ہے. تو کتابیں کچھ جو ہے نا میں نے پرنٹر کے ذریعے نکالنی ہیں، اور کچھ ابھی بھی ہیں.
अब वो मुझे यकीन जाने मिलती कोई नहीं है। मैं पूरी दुनिया के मेरे रुआबित हैं, लोगों से मैं पूछ चुका हूं कि यार ये किताब फलां वाली कादियानियों की किताब है, इनकी वेबसाइट के ऊपर तो मौजूद है, ये मुझे चाहिए। चलो जी मान लेते हैं पाकिस्तान के अंदर इनकी किताबों के ऊपर पाबंदी है, थोड़ी देर के लिए मानते, हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो चलो यार इंडिया के अंदर तो कहीं छपती होंगी, इंडिया के अंदर भी पाबंदी है। वो इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम्हारे जो तुमने मरकज बनाए हैं इन मुल्कों के अंदर, वो वहां पे कोई किताबें ये किसी को मिलती हो? कभी भी नहीं। अब ये भी जो दोस्त बैठे हैं ये इन यूरोप के मुल्कों के अंदर कोई कादियानी हमें बताए, हम इनकी ड्यूटी लगाते हैं यार हमारा एक सेट खरीद के रखो, हमें पहुंचाओ, है ही नहीं। इनकी किताबों के ऊपर पूरी दुनिया में पाबंदी है, याद रखिए। इन्होंने सिर्फ वैसे रोला डाला होता है, ओ पाबंदी लगा दी, पाबंदी लगा दी। पाबंदी पूरी दुनिया में तुम्हारे ऊपर पाबंदी है। हाँ जी दोस्त आए, आप कर ले बात। अच्छा ये किंग भाई हैं, पहले ये मुफ्ती साहब आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे थे। अजलान जट साहब आप अपनी बारी का इंतजार करें। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके ठीक वही है जो कहते हैं मैं नया नया कादियानी हुए, अजलान जट वही है। जी जी अच्छा पहले किंग भाई बात कर ले फिर इनसे करेंगे। ठीक है जी किंग भाई बता रखे अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब बस 5-7 मिनट चाहूँगा आपसे। एक तो मेरा ना एक सवाल ये था कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शक्कुल कमर का है वाक़या, ये फिजिकली हुआ था? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, या ये एक क्या उसको सिंबॉलिक एक था? इसके बारे में एक ये मेरा सवाल है, प्लीज अगर मुख्तसर इसका जवाब दे दें। जी एथीस्ट जो दैरिये हैं या कादियानीज हैं वो तो इन तमाम मौजूदात को फिजिकली नहीं मानते, ठीक है। जो मुसलमान है वो तो फिजिकली मानते हैं, ये सिंपल जवाब है। मतलब वो 2 टुकड़े हुआ था असल, मतलब उंगली का इशारा किया था, टुकड़े हुआ था और फिर जुड़ गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुफ्ती साहब दूसरा सवाल ये है छोटा सा ऐसा ही कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मराज अभी गुजरी है थोड़े दिन पहले, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकली गए थे, महराज हुआ था, आसमानों की सैर की थी, या वो एक रूहानी सफर था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए थे और नबी के ख्वाब तो सच्चे होते हैं हमेशा, तो वो उन्होंने सफर रूहानी तौर पे किया था, या वो फिजिकली एक इंसान जैसे हम आज की दुनिया में चांद कह रहा हूँ दूसरे कंट्रीज में फ्लाइट पे जाते हैं या सैर करने दूसरे कंट्रीज में विजिट के लिए जाते हैं, तो इस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकली गए थे खुद पूरे जिस्म के साथ भी आसमानों पे बुराक पे बैठ के? इसके बारे में बता दें। सबसे पहले तो ये किताब देखिए, इसी मौजू के ऊपर आजिज की पूरी किताब ये नेट के ऊपर भी आपको मिल जाएगी, कादियानी इतराज़ात के जवाबात मिराजे जिस्मानी, ठीक है। और अल असरा वल मिराज नाम की किताब लिखी थी कादियानियों ने, उसका ये जवाब है, यानी कादियानियों ने जो किताब लिखी थी उसका हमने जवाब दिया। अच्छा अगली बात ये है कि मुख्तसर जवाब तो मैंने पहले अर्ज कर दिया था ना कि हमारे नजदीक तो फिजिकली ये सब कुछ हुआ है। मोजज़ा की डेफिनेशन ये है कि जो अक्लों को हैरत में डाल दे, यानी अक्ल आजज आ जाए, इंसान आजिज आ जाए, इंसान की ताकत और बसात से बाहर हो वो चीज, उसको कहते हैं मोजज़ा। अगर यही चीज नबी रसूल से सरदर्द हो तो मोजज़ा, और अगर अल्लाह के किसी वली से जो कि नबी रसूल नहीं है उससे सरदर्द हो तो उसको करामत कहती है। तो हमारे नजदीक तो ये फिजिकली सब कुछ हुआ है, कोई इनकार करता है वो उसकी अपनी मर्जी है जी। और जिस्मानी मिराज हुई है, रूहानी नहीं, जिस्मानी मिराज हुई है।
जी जी, वो खुद गए थे आसमानों पे सैर करने, ठीक है, तो ठीक हो गया। जी तो मुफ्ती साहब, मैं आप चले, आपने ज़ाहिर बात है हम तालिब इल्म हैं, तो आप उस्ताद हैं, आपने ज़्यादा पढ़ा है और किताबों का मुतालिया किया है, तो इससे ये साबित, तो फिर ये जो हजरत कह रहा हूँ, शायद हजरत कह सकते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, सॉरी, जो वो थे हजरत, जो बड़ा फेमस वाकया है कि वो बारात एक डूब गई थी, 7 साल बाद वो आ गई थी, दोबारा जिंदा हो गई थी, वो गौसे पाक के बारे में जो मंसूब किया जाता है, तो आप इस पे ईमान रखते हैं, मतलब उस आप मानते हैं कि वो सच्चा वाकया है, करामत थी, जैसे अभी आपने कहा कि बड़ी करे तो जवाब मैं देता हूँ। सवाल आपका एक था, आपने कहा मैंने एक ही करना है, तो अभी ये आपका ये मैंने ये कहा था 5-6 मिनट लूंगा, मैं मुख्तसर बात करता तो मैं बहस नहीं करता था। अब वो तो मुझे पता है, पहले भी आपसे टाकरा हुआ है मेरा, वो मुझे पता है सारा। अच्छा, गुजारिश ये है कि मोजज़े की करामत की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि जो अक्लों को हैरत में डाल दे, जो आम इंसानी ताकत से बाहर हो, उसको करामत कहते हैं। इस डेफिनेशन को अगर तो आप कर लें कबूल, तो फिर सारे मसले हल हो जाते हैं, और अगर इस डेफिनेशन को कबूल नहीं करते तो फिर सारे मसले ही खड़े हो जाते हैं। बस ये है जवाब। जब मैं आपके बारे में इसलिए आपसे पूछ, आप खुद क्या समझते हैं कि वो वाकया ऐसे हुआ होगा या हुआ? मैं तो सब कुछ मान रहा हूँ ना, मैं तो मुनकिर तो नहीं हूँ, मैं तो मान रहा हूँ। मैं तो करामत का भी हुआ था, मैं तो करामत का भी इकरार करता हूँ, मोजज़े का भी इकरार करता हूँ, मैं मुनकिर तो नहीं। मैं मुफ्ती स्पेसिफिक वाकये के बारे में आप पूछ रहा हूँ आपसे, ये वाकया जो हुआ था, कोई वाकया फिर बड़े वाकयात है मुफ्ती, सिर्फ ये मैं कहता हूँ। आप क्या समझते हैं इसके लिए? आपका अभी तो आपने फरमाया था मैं उलझूंगा नहीं, अभी तो उलझ रहे हैं आप। आपने ओवरऑल करामत को एक्सेप्ट किया है ना, आपने इस करामत को एक्सेप्ट करते हैं? ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, सब जानते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, बच्चा समझते हैं हमें। तो ये है कि इस एक वाकया के बारे में हमारे अपने कई उलमा इकराम ने इसका इनकार किया हुआ है। अल्लामा फैज अहमद ओवैसी साहब की किताब है, उन्होंने फरमाया कि नहीं, ये वाकया वैसे मंसूब की है, और भी दीगर कई उलमा ने ये इसके ऊपर कलाम किया हुआ है, पहले का किया हुआ है कि भाई ये वाकया ना मंसूब किया गया है, इसकी कोई हकीकत नहीं। वल्लाहु अलम व रसूल। अगर फिर भी हुआ है तो मैं तो इकरार करने वाला हूं, मैं तो मानने वाला हूं कि एक वली के हाथ से एक ऐसा काम कि जो आम इंसानी ताकत से बाहर हो, वो कर सकता है, सरजद हो सकता है, तो ठीक है, दोनों ही चीजें कबूल है। अगर ये वाकया नहीं भी हुआ फिर भी, अगर वाकया नहीं भी हुआ फिर भी ठीक है, अगर हुआ है तो फिर भी ठीक है। जी जी, माशाल्लाह। मतलब आप शक में हैं कि ये हुआ होगा, तो आप मानते नहीं हुआ तो आपको शक में आप है ना, मैं तो नहीं हूं। तभी देखे मैंने आपसे, मेरे भाई हैं बड़े आप। अच्छा, ये नीचे अजलान साहब आए हैं, कर लें जी आप बात। चले, बहुत शुक्रिया जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज जी। अजलान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वस्सलाम। जी जनाब जी, करें को बात करनी आप? भाई मुझे तो नहीं पता, आप ही आए हैं, कहीं कोई बात करनी है तो कह रहे हैं आप कोई नवे कादियानी हुए। जी जी जी, मुफ्ती साहब अपना खत्म नबूवत का कीदा समझा दें। आप नए कादियानी हुए हैं? नहीं, 3 महीने हो गए। 3 माह हो गए। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 27। 26 साल। 27 साल हो। पहले भी मुसलमान थे आप शशो पंज में पड़ गए, परेशान हो गए। पहले मैं क्या बताऊं कि पहले कीदे दुरुस्त नहीं थे ना, आप ठीक हो। पहले कीदे दुरुस्त नहीं थे ना, आप ठीक हो गए। नहीं, पहले मुसलमान थे आप पहले। जी, सरकारी मुसलमान। जी, सरकारी मुसलमान।
सही हो सरकारी मुसलमान। तो पहले आपके क्या कह रहे हैं अकीदा ठीक नहीं, पहले आपके क्या कह रहे हैं अकीदा ठीक नहीं था पहले आपका, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। तो अब अकीदा ठीक हो गया, अच्छा तो अब अकीदा ठीक हो गया। जी बिल्कुल ठीक होगा। देखिए मुझसे फर्क ये है कि आप भी करने वाले फर्क ये है कि आप भी करने वाले का इंतजार कर रहे हैं, हमने उसको आने वाले को। भाई ये फर्क है और कोई फर्क नहीं, भाई ये फर्क है और कोई फर्क नहीं। मैंने जो पूछ रहा हूँ उसका नहीं आप बता रहे, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका नहीं आप बता रहे, तो वही जी जो पूछो तो रबिया मारनी है तो मुझे बता दे, रबिया मारनी है तो मुझे बता दे, मैं अभी से रेडी हो जाऊँ। इतनी मुझे ना असल में सांस चढ़ जाए, तो इतनी मुझे ना असल में सांस चढ़, मैं आपके पीछे दौड़ रहा हूँ, नहीं मैं आपके पीछे दौड़ रहा हूँ, नहीं करे बात, कोई बात नहीं करे। राम राम से पोला पोला टुरने हैं, हौली हौली टुरने हैं, पोला पोला टुरने लोग बैठ के सुन रहे हैं, चलो इतने लोग बैठ के सुन रहे हैं, चलो कुछ आपसे हम सीखेंगे, हमें सिखाइएगा, ठीक है, आप हमें सिखाइएगा, ठीक है, सही है। अच्छा तो कौन सा कीदा आपका कादियानियों ने ठीक, कौन सा कीदा आपका कादियानियों ने ठीक किया? जी मसीह मौद को मानने वाला, मसीह मौद को मानने वाला, मौत को मारने वाले कि आप हम नहीं मानते ना, हम तो मानते, आप हम नहीं मानते ना, आप फरमा रहे थे पहले मेरा कीदा ठीक नहीं था, फरमा रहे थे पहले मेरा कीदा ठीक नहीं था, अब कीदा ठीक हो गया, ऐसा ही है। पहले आपका कौन सा कीदा ठीक नहीं था, पहले आपका कौन सा कीदा ठीक नहीं था, कादियानियों ने आपका कीदा ठीक कर दिया। देखें आने वाले को मानना था, देखें आने वाले को मानना था, जो आप उसको नहीं मानते मान लिया, तो आप उसको नहीं मानते मान लिया, तो ये कीदा दोस्तों आने वाले को आप आने वाले नहीं मानते थे, आप पहले आप नहीं मानते थे, पहले जब आ गया तो फिर मान तो पहले जब आ गया तो फिर मान तो लेके आना था। यार एक जगह पे रुके, मुझे नहीं आपका समझ में आ रही है बात क्या करना चाह रही है और मैं कौन सी बात करूं, मुझे नहीं समझ आ रही। पहला आपका कीदा कौन क्या था, पहले आपका कीदा कौन क्या था, पहले किया एक आने वाला, एक आने वाला, ये कहाँ पे पढ़ा था आपने, किसने बताया था, कहाँ पे पढ़ा था आपने, किसने बताया था? हदीस शरीफ जी, ये हदीस ने बताया था जी, हदीस ने बताया था जी, बिल्कुल एक आने वाला है, तो वो कीदा ठीक नहीं था आपका, तो वो कीदा ठीक नहीं था, ठीक था ना, ठीक तब तक था जब ठीक था ना, ठीक तब तक था, जब आ गया फिर तो गलत हो गया ना, अगर नहीं माना, आ गया फिर तो गलत हो गया ना, अगर नहीं माना आपने। रुक आराम से, वो हदीस कौन, ये वो हदीस बता दे, खोल लेता हूँ मेरे पास, कसम फरमाया कि कुर्बे क़यामत कौन सी हदीस है कसम? ईसा इब्न मरियम हमारे दरमियान कसम उठा के क्या फरमाया, मुझे बताए, मैंने कसम उठा के फरमाया कि मरियम के बेटे तुम्हारे दरमियान नाज़िल होंगे। वो कौन सी हदीस है, मुझे नहीं पता, नंबर दे दूंगा, आपको नहीं पता इसमें, बाद में नहीं, अभी बाद में नहीं, अभी बाद में देखेंगे, तो बाद में देखेंगे, बात तो भी हो रही है। देखिए आप तहकीक करके यार एक बंदा तहकीक करके 26 साल का एक अकीदा छोड़ा है, तहकीक करके आप आए हैं ना, आप आए हैं ना, इधर 3 माह हो गए आपको, 3 माह हुए हैं, और इस एक हदीस के ऊपर आपने रिसर्च की, तो वो आपको पता ही नहीं है, पता है लेकिन मैं ढूंढूंगा, मैं कह रहा हूँ नंबर याद नहीं है, मैं बता दूं नंबर बता दे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2222, ये वाली हदीस है, जी यही पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, पढ़ देना फिर देख लेते ये जिसमें हुजूर ने फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्सी बियदिही यंजिला फीकुम इब्नु मरियम, ये वाली हदीस है, बिल्कुल ठीक। अच्छा इस हदीस को आपने पढ़ के तो क्या इस्लाम को छोड़ दिया? नहीं ये वन ऑफ द रीजन है, और भी हैं ये भी अभी एक पे बात खुली है मेरे सामने बात कर लेते क्या ख्याल? ठीक है कह रहे हैं। अच्छा इसकी आपने तहकीक ऐसा ही है? जी बिल्कुल ठीक है जी। तो पहले आप क्या समझते थे इस हदीस से?
پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اس نے آنا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام. اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے. جی کہاں ابن مریم لکھا ہوا ہے، مطلب سے یہی مطلب لیتے تھے پہلے. صحیح ہو ٹھیک ہو. تو یہاں پہ تو ابن مریم کا ذکر ہے. مریم مرزا قادیانی کیا ابن مریم ہے؟ یہ مفتی صاحب پہ دیکھنا پڑے گا نا اس کو. نہیں کیا دیکھنا پڑے گا؟ کیا طویل کرنی پڑے گی؟ ہاں بتاتا ہوں. طویل کرنی پڑے گی. قرآن کریم علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے، تو اس لیے پھر جس نے ابن مریم بتایا حدیث کے اندر ذکر ہے کہ ابن مریم اللہ کے نبی قسم کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم میری جان ہے وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ابن مریم ایک اور منصفات جیسے اتریں گے نازل ہوں گے فیکم ابن مریم نازل ہوں گے اور نازل بھی کون ہوگا؟ ابن مریم ہوگا. جی اس پہ دو اینگل ہیں. نازل آسمان زمین سے نہیں پھوٹتا. اور اگلی بات ہے ابن مریم نے آنا ہے. ابن کسی ٹی نے چراغ بی بی کا ذکر کہیں نہیں ہے. کسی ٹی کا بچہ یہ چراغ بی بی کا بچہ. ہم تو لیں. اچھا بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت، ٹھیک ہے. نہیں یہ بات نہیں، یہ ابھی حدیث پہ قرآن حدیث آپ نے سنائی ہے، میں نے سنائی ہے، میں نے نہیں سنائی ہے. یہ وہ والی حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں جو ریسرچ کر کے میں نے اسلام کو تو بتاؤں گا. بات یہ جو حدیث شریف ہے اس میں ابن مریم ہے نا، اس کو اس طرح سمجھا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، ٹھیک ہے. اب جس نے وہ عیسیٰ علیہ السلام، ایک بات ہو. اب جس نے آنا ہے وہ مثل مسیح ہوگا، ٹھیک ہے. وہ کیسے ہو؟ یہاں پہ ابن مریم کا ذکر ہے. ابن مریم جو ہے وہ صفاتی انبیاء کرام کا سارے انبیاء کا. اس کو میں نے یار یہ بڑی کہانی مجھے اتنی لمبی چوڑی اللہ دی قسم نہ سنا سکتی. رک جائیں سیدھی بات بتائیں میں سیدھا جٹ آدمی ہوں. مجھے سمجھ اتنی لمبی چوڑی مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھے بتائیں یہ پڑھ کے تو لیں یار، سن تو لیں. پڑھ کے کر کے اپنے اسلام کو چھوڑا قادیانیت ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر اللہ کے نبی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ابن مریم نازل ہوگا. اللہ کی قسم. اور یہ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ سنے قسم کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ کے نبی اٹھا رہے. اور مرزا قادیانی متعلق پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ سنیں اب نیڑے ہو جائے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ روحانی خزائن جلد صفحہ 192 کہتا ہے والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاہری. کہ قسم والی جو حدیث ہے وہ دلالت کہ وہ ظاہر کے اوپر محمول ہو. لا طویل کوئی طویل نہیں کی جائے گی. مرزا قادیانی کہہ رہا ہے اور آگے کہتا ہے وَإِلَّا فَأَيُّ فَائِدَةٍ كَانَتْ فِي ذِكْرِ الْقَسْمِ. کہتا ہے اگر حدیث قسم والی حدیث کو ظاہر کے اوپر نہ رکھا جائے تو پھر قسم اٹھانے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ تو پتہ کیا چلا یہ مرزا قادیانی کا بنایا ہوا قاعدہ کلیہ ہے. قسم والی جو حدیث نہیں ہوتی بالکل کوئی طویل نہیں. ظاہر کے اوپر اس کو رکھا جائے گا. اور ظاہر اس کی کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم. کہ اللہ کی قسم جس کے قدرت میں میری جان ہے مجھے ابن مریم کا بیٹا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. وہ تمہارے اندر نازل ہوں گے. نزول آسمان سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے, اور مرزا قادیانی تو ہے وہ گسیٹی کا بچہ ہے, تو گسیٹی کا بچہ چراغ بی بی جس کا نام آپ کو پتہ ہی ہوگا, تحقیق کی ہو, اس کو گسیٹی کہتے تھے, مائی گسیٹی. تو گسیٹی دا پتر وہ کیسے بن گیا ابن مریم, یہ تو اب مرزا قادیانی اپنے بارے میں پتہ کیا کہتا ہے, میں کیسے ابن مریم میں بتاؤں آپ کو, سنیں آپ کو تو پتہ نہیں نا, تحقیقیں آپ نے کی ہیں, ہم آپ کو رہے ہیں, چلیں وہ کہتا ہے روحانی خزین جلد 1950 ہے, مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نا 2 سال تک مریم بن گیا, 2 سال تک جب میں مریم بن گیا تو پھر مجھے 10 مہینے کا حمل ٹھہر گیا, 10 مہینے کا مجھے جب حمل تو میرے اندر وہ بچہ پل رہا ہوتا ہے عیسیٰ. تو وہ جب 10 مہینے کے حمل کے بعد وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جمپ لگا کے میرے اندر واپس آ جاتا ہے, میں مریم تھا, میرا بیٹا عیسیٰ تھا. تو اس طور پر میں ابن مریم بنا, کہتا ہے مجھے مریم بنایا گیا طور سے میں ابن مریم ٹھہرا. وہ تو ابن مریم یہ طویل کر رہا ہے, جبکہ خود مرزا قادیانی کا قاعدہ کلیہ ہے, قسم والی جو حدیث طویل نہیں ہوتی, ظاہر کے اوپر اس کو محمول کیا جائے گا. مجھے بتائیے آپ نے کیا ریسرچ کی اس کے بارے میں, اب آپ بولیں. جی اچھا بات یہ ہے کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں یہاں پہ ابن مریم کا ذکر نہیں, ایک تو اس میں طویل تو کار ہی نہیں, عیسیٰ ابن مریم کا ورڈ دکھائیں مجھے ابھی. اچھا نہیں ٹھیک ہو گیا, مطلب ابن مریم سے مراد کوئی اور ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل طویل اس میں سارے انبیاء کرام ابن مریم, ٹھیک ہے, سارے نبی کیا ہوتے ہیں, انبیاء کیا ہوتے ہیں, ابن مریم ہی ہوتے ہیں, صفاتی طور. ہاں جی, اچھا اس کے حدیث شریف یہ ہے کہ سن لیں ابھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے شیطان مست کرتا ہے سوائے ابن مریم کے. اس حدیث شریف کا جواب آپ نے مجھے دینا مفتی صاحب. جی مفتی صاحب گوگل تے شروع ہو گئے نا یار, میری آواز شاید ڈراپ ہو گیا, کیا مسئلہ, آواز نہیں آ رہی اذلان صاحب؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے مولانا صاحب, میری آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ نہیں, آپ کی آواز مجھے آئی ہے. جی بولیں. آپ کہہ رہے تھے کہ سارے نبی ہی ابن مریم ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے نا؟ صفاتی طور. اچھا صفاتی طور پہ, ہاں جی. تو مطلب یہ 2 چیزیں آپ نے ثابت کرنی, سننے آرام, 2 چیزیں آپ نے ثابت کرنی. ایک تو تمام نبی صفاتی طور پہ ابن مریم ہوتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اس حدیث کے اندر وہ ایک نبی کا ذکر ہے, سب کا ہی ذکر ہے, کیونکہ اگر سارے ہی ابن مریم ہے تو پھر سب نہیں آنا ہے. تو یہ آپ نے 2 چیزیں ثابت کرنی. چلیں شروع ہو جائیں. جزاک اللہ. چلے اس پوائنٹ پہ تو ہے نا کہ ابن مریم سے مراد, کیا کون سے پوائنٹ پہ آیا ہوں کہ ابن مریم سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے. میں نے کب کہا ہے؟ ابھی تو کہا آپ نے. میں نے تو نہیں کہا, میں نے کب کہا ہے؟ ٹھیک ہے چلے سن لیں, میرے بھی سن لیں پوائنٹ. نہیں میں نے کب کہا, مجھے جھوٹ کیوں آپ میری طرف منسوب کر رہے ہیں, جو بات میں نے کہی نہیں ہے, اپنا لقمہ میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے. نہیں جھوٹ کیوں بولا آپ, جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں تو آپ بھی پھر مسیح موعود بن جائیں گے. چلیں کریں بات. جی ابن مریم سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے, تو یہ بات مانتے ہیں آپ؟ جی یہ بات مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم سے مراد, یہاں پہ ابن مریم سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہیں؟ میں تو نہیں مانتا, میں تو ایک ہی ہے, ابن مریم ایک ہی ہے, کوئی 2 نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا مسلمانوں کا ایک ہی عقیدہ ہے, میں بتاتا ہوں. ایک حدیث شریف یہ تو دیکھیں نا, یہ دیکھیں کسی قادیانی سے جا کے ہم پوچھیں گے نا تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ تو چونکہ 26 سال پہلے مسلمان رہے ہیں نا,
आपसे ये पूछनी ये बातें ज्यादा हमें आसान हो जाएगी। बकौल आपके सुने तो सही ना, सुन तो लें। बकौल आपके 26 साल आप रहे, जिस अकीदे के ऊपर वो अकीदा आपको ठीक नहीं लगा, फिर आपने तहकीक और रिसर्च करके 3 माह कबल आपने कादियानियत को कबूल किया। तो आम कादियानी जो विदेशी कादियानी है, जो ये क्लेम करते हैं कि हम विदेशी हैं, उनको शायद इतना नहीं पता, तो आपको ज्यादा पता होगा। आपने ये सारे मसले आपने हल करने, ठीक है, सारे मसले आपने हल करने, क्योंकि आप तहकीक करके आए हैं ना। जी शुरू हो जाए, शुरू हो जाए। मैं पटारी खोल कुछ और आपको दिखाता हूँ कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको शैतान मस करता है सिवाय मरियम और उनके बेटे। नहीं वो बात ही नहीं बने मरियम के हदीस नंबर 22 के ऊपर ही रहना है, उधर ही रहना है। इधर छड़पियां मैं आपको पहले कहा था, छड़पी नहीं मारनी, इधर कदी उधर नहीं, एक जगह पे रह के बात ना करें। ये गलत बात का है, एक जगह पे छड़पियां नहीं। मुझे सांस चढ़ जानी है, यकीन जानो। पहले मैं थकिया बैठा है। मौलाना साहब जट साहब दी गल ते सुनो, क्यूट लग यार बैठ जा, तू कादियानी तू चुप करके नहीं बैठना पिया, बंदे दा बच्चा बन, बिस्ती कराओगे चंगे रहोगे। इनू थल्ले लाओ, सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਜ਼ਲਾਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਹੱਥੇ ਚੜਿਆ ਸਾਡੇ, ਮਸਾ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾदियानी ਢਾਈ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੀ ਦੱਸੇ। ਨਹੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਓ ਕਹਾਣੀ, ਟੋਰੋ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਟੋਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ इब्ने मरियम मिर्जा कादियानी कैसे, वो कसीटी का पुत्र इब्ने मरियम कैसे बन गया? यार सुनने, वो तो कसीटी का बच्चा है, तो कसीटी का पुत्र इब्ने मरियम बना तो बना कैसे? ये स्टोरी बताई मैंने आपको, स्टोरी बता दिया। वो कहता है मुझे 10 महीने का हमल ठहरा, वो कहता है मुझे 10 महीने का हमल ठहरा है। पहले मैं मरियम था, अंदर बच्चा ईसा पल रहा था, तो वो जब पैदा हुआ तो इस तौर पर मैं इब्ने मरियम ठहरा। तो उसने तो ये तरीका बताया। हालांकि गूगल कहती है कि 10 महीने का हमल खोती को होता है, तो वो खोती वाला हमल इसको हो गया है, तो वो आपकी मर्जी, अपने मिर्जे को खोती मानना है या नहीं, वो आपकी खुशी है भाई। हमें तो इस हदीस वाला मसला हल करो। हदीस ने तो ये कहा कि कसम, हजूर फरमाते कसम है मुझे कि इब्ने मरियम तुम्हारे अंदर जरूर नाज़िल होंगे। और मिर्जा कादियानी कहता है कसम वाली हदीस की तवील नहीं होती, बिल्कुल उसको जाहिर के ऊपर रखा जाता है, और आप कर रहे हैं तवील ने। बताएं मुझे, मिर्जे की बात अब माननी है कि एक कादियानी बचुंगड़े की बात मैं मानूं? मैं किसकी बात? पहली बात मुफ्ती साहब, पहली बात तो ये कि तवील कोई नहीं की। एक बात और की तवील ही कर दे ना पे। तो ईसा इब्ने मरियम नहीं, इब्ने मरियम। वो इब्ने, पहले तो आपने इब्ने मरियम का वो सारे नबियों इब्ने मरियम है, वो अभी तक आपने साबित नहीं किया। फिर आप कह रहे हैं, मैंने आपको सवाल किया था कि इस हदीस के अंदर वो फिर सारे नबियों ही आने चाहिए थे, तुम तो एक मान रहे, तुम तो मिर्जा कादियानी को मान रहे हो। हाँ जी बता, क्या वो मिर्जा कादियानी सारे नबी मिर्जा कादियानी के अंदर इकट्ठे हो गए? यार सुनिए ना, ये सब सवालों के जवाब दो। जी पहला सुन लें। पहले का जवाब ये है कि एक हदीस शरीफ है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे शैतान मस करता है सिवाय मरियम और उसके। ये मेरा मौजू नहीं है, ये नहीं, मैं कुछ और पूछा आपसे। ये आप ना सुन, मैंने भाई ये इस पे बात मैंने करनी ही नहीं है, मैं क्यों करूं? इससे तो मैं इधर उधर नहीं, मेरे पास ना, मैं इतना वेला को नहीं तुम्हारी कहानियां सुनता रहूं। मेरे मौजू के मुताबिक मुझे जवाब दो। आपकी बारी, आप बताएं। नहीं अब देखे, बात आप कर रहे हैं ना, टाइम आपने लिया है, करें आप बात, लेकिन मौजू पे तय के तो करें। आप मुझे ले गया वो शैतान जब पैदा होता है बच्चा तो मस नहीं करता, इस हदीस का उसके साथ कोई तल्लक है? बताए जी, कोई रद्दी बराबर कोई तल्लक वास्ता। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं मिर्जे कादियानी के खोती वाले हमल का पूछ रहा हूँ कि उसको 10 महीने का खोतियों वाला हमल हो रहा है, तो आप मुझे ले गए वो बच्चा पैदा होता है सब ऐसे बात। और नहीं, मुझे मैनू साह चढ़ जाना है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। ना ठहर जो यार, कोई नहीं बोलेगा बेच, एक बंदा एक नाल गल होएगी जी। तो बता रहा हूँ आपको कि इब्ने मरियम कैसे हैं सारे, कैसे हैं ये हदीस शरीफ बताई तो है अभी। हदीस के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मिर्जा कादियानी पे रत्ती बराबर भी ये फिट नहीं आ रही। बिल्कुल। फिर आगे सुनो, हदीस के अगले अल्फाज ये है कि हकमन मुक्सितन, वो एक आदल हुक्मरान बन के नाज़िल होंगे। तो मिर्जा कादियानी आदल हुक्मरान था? कोई पहले तो बताएं, वो हुक्मरान था?
फिर वो आदिल था। वो सुने तो सही ना, सुने तो सही, हदीस की रत्ती बराबर एक लफ्ज के ऊपर भी मिर्जा कादियानी सादक नहीं आ रहा। आगे सुनने तो मिर्जा कादियानी ने कहा कि मैं बराहीन अहमदिया लिखने लगा हूं इस्लाम की हमायत और नुसरत के अंदर 50 उसकी जिल्दें होंगी हैं, और लोगों से 50 जिल्दों के पैसे, अरबों रुपया, मौजूदा दौर का अरबों रुपया उसने इकट्ठा किया। चंदा दे दो, चंदा दे दो, चंदा दे दो, चंदा दे दो। इकट्ठा करने के बाद 25 सालों के अंदर छोटे छोटे 5 रिसाले लिख के, छोटे छोटे 5 रिसाले 25 सालों में लिखने के बाद मिर्जा कादियानी कहते हैं 5 और 50 में सिफर का ही फर्क है, तो लिहाजा वो 50 वाला वादा पूरा हो गया। वो पैसा जो मैंने वो इकट्ठा किया था ना, वो तो ये हकमन मुक्सितन के ऊपर पूरा उतरता है। ये होता है आदल हुक्मरानी, ये होती है। आगे सुने, सलीबा, वो क्या करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे। मिर्जा कादियानी ने तो लितर खाए हैं वो अब्दुल्ला आथम पादरी से और ईसाइयों। आज तक ईसाई जो है ना, वो मिर्जा कादियानी का कचूमर निकाल रहे हैं। और मिर्जा कादियानी नारे लगाता था कि वो जनाब बहुत मैंने ईसाइयत खत्म कर दी, ये कर दिया। ईसाइयत मिर्जा कादियानी के मरने के बाद पूरी दुनिया के अंदर फैल गई है और आगे से ज्यादा हो गई है, वो पहले से भी ज्यादा। हदीस के अगले अल्फाज सुने, अगले सुने, वयक़्तुलल खिंज़ीरा, वो खिंजीर को कत्ल करेगा। कैसे करेंगे? मिर्जा कादियानी ने कौन से खंजीर को कत्ल किया है? अगरचे मिर्जा कादियानी ने ये तस्लीम की है कि मैं सूर मार हूं, ठीक है, तो वो कहता है मैं सूर मार हूं, मसीह सूर मार, खुद ये मिर्जे ने कबूल की है। हवाला चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं अभी हवाला आपको दे दूं। जिक्र हबीब के अंदर लिखा है, मुफ्ती सादक ने लिखा है कि मिर्जा कादियानी जो है ना, ये सूर मार है, मसीह सूर मार। और उसने कौन से खंजीर को कत्ल किया? आगे सुने, वह ज्यादा अल जिजिया था। भाई किसी को और सुने तो सही, हदीस तो पूरी कर लूं, हदीस तो पूरी करने देना। हदीस आपने पेश की है, सुना मैं रहा हूं, सुने तो सही, हदीस है। वह ज्यादा अल जिजिया था, और जनाब जिजिया जो है ना, मौकूफ किसने की है? मिर्जे ने की है। कहां पे की है? आगे, वह यफीद अल मालू हत्ता ला यकबाला हु अहादुन, और माल इतनी कसरत से हो जाएगा कि कोई भी लेने वाला ना होगा। क्या मिर्जा कादियानी तो खुद मांगता था, कासा उसने पकड़ा हुआ था, पूरी जिंदगी चंदे मांगते उसकी गुजरी है, और आज तक कादियानी चंदे मांग रहे हैं। 50 किस्म के चंदे एक एक कादियानी के ऊपर होते हैं, हत्ता के मरते वक्त उसके कफन का भी चंदा, उसको कब्र में दफनाने का चंदा, बहिश्ती मकबरे के नाम पे चंदा है। बंदा पैदा होता है तो उसका चंदा, वो पैदा होके मरते दम तक, उसके कफन तक, उसको दफनाने तक के चंदे ही चंदे। तो मंगतों की कौम है कादियानियत। तो ये माल इतना कौन सा कसरत से हो गया जी? तो इस हदीस में एक लफ्ज के ऊपर भी मिर्जा कादियानी सादक नहीं आ रहा। चले बाप की बारी है ना, बाप ने बताना, बताएं खंजीर को कैसे कत्ल करेंगे, सलीब कैसे? वो बाद में पहले तो इब्ने मरियम नाज़िल होगा, पहले हदीस के पहले लफ्ज पहले इसके ऊपर। अब आप अल्लाह की कसम हुजूर फरमाती हैं, और मिर्जा कादियानी कहता है कसम वाली जो हदीस होती है उसकी तवील नहीं होती, कोई तवील तो की आपको मिर्जा कादियानी क्या है? तो कह रहा हूं कोई तवील। अरे फिर बताएं, मिर्जे को करे साबित इब्ने मरियम, कैसे है मिर्जा कादियानी इब्ने मरियम? और दूसरा ये भी बताइएगा कि मिर्जा कादियानी सिर्फ इब्ने मरियम में ईसा नहीं ना, बकौल आपके ऐसे ही है, ऐसे ही है, मिर्जा ईसा तो नहीं ना? वो दूसरी हदीस में जाएंगे तो देख नहीं, इब्ने मरियम आप कह रहे हैं कि इब्ने मरियम है मिर्जा कादियानी, वो ईसा नहीं है, ऐसे ही है? नहीं, अभी बात इस पे हो रही। इससे इब्ने मरियम से मुराद कौन है? किस इब्ने मरियम? ये जो हदीस के अंदर एक इब्ने मरियम की बात है, सारे नबियों का जिक्र है, यहाँ जमा का सीगर है। हाँ, तो ये देखिए, जंजीला ये जमा का सीग है, ये तो वाहिद का सीग है। किधर? जंजीला नाज़ाला जंजीलूना, यहाँ जमा का सीगा अगर होता ना तो यहाँ होना चाहिए था जंजीलूना, जंजीलू होना चाहिए था। लाइन पे बताता हूँ, एक मिनट सुनने आप। बात ये है, तुम कह रहे हो वो सारे नबी इब्ने मरियम होते हैं? हाँ जी, उन सारों में से यहाँ ये तो एक का जिक्र है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इस सारे में से एक आना है। एग्जैक्टली
इब्ने मरियम एक आना है सारे नबियों से, आप भाई समझ। इब्ने मरियम एक आना है जी मार गया ना पलसेटा एकदम सही बताया मैंने। अच्छा एक नहीं आना है ना, सीधी वो सी एक तो जो है वो साबित भी कर दिया। ईसा है ना, इब्ने मरियम से मुराद ईसा है कि नहीं? तब तक थे जब कुरान इस हदीस के अंदर इब्ने मरियम से मुराद ईसा है या कोई और है, बताओ ना। हाँ अब कुरान करीम से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कुरान करीम ने इस हदीस पर ही रहना। हाँ इस हदीस में इब्ने मरियम से मुराद ईसा है या कोई और है? इफाती तौर पे कोई और है। कोई और है जी देख लेना, मुकर ना जाना। जी जी बिल्कुल। यानी हजरत ईसा इब्ने मरियम यहाँ से मुराद नहीं, ऐसा ही है? हाँ जी कोई और है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इनू कहते ने गल जबरदस्त हो। चलें जी, पहली बात तो ये है कि आपने चूंकि इस हदीस की तहकीक करके बकौल आपके आपने इस्लाम को छोड़ा और कादियानियत को कबूल की है। अब मुझे बताएं कि ये क्या 1400 साल में कभी किसी का ये मौकफ हो? अगली बात ये है कि खुद मिर्ज़ा कादियानी का ये मौकफ हो, ये जो आप कह रहे हैं। दो चीजें हैं, एक तो 1400 साल पहले कभी किसी का ये मौकफ रहा हो, एक ये कि खुद मिर्जा कादियानी और कादियानियत का ये मौकफ हो। ये दो चीजें आपने बतानी है, बताएं, साबित करें। हाँ बिल्कुल। जिस आने वाले की पेश को इसने आने तब जब कहानी नहीं हवाला बता रहा हूं ना, सुनना भी कहानी नहीं मैं सुननी यार, मेरे पास इतना वक्त नहीं ते बैठ के ना इथे गप्पा गुप्पा मारो, मेनू इजाजत दियो। नहीं कहानी नहीं, हवाले के बगैर मेरे भाई मैं हाफिज कहानी नहीं मैं हवाला देता हूँ सर, मैं हवाला देता हूँ, हवाला पहले मैं देता हूँ। हाँ चले सर सही और मसला। यार एक मिनट और भाई, और कोई नहीं बोले भाई, एम्बुलेंस चुक के ले जाओ, एम्बुलेंस ले जाओ घर। पहले एक बंदे नाल गल कर दियो, एक कादियानी फंसिया हुए मैं ओनू हिला मुफ्ती साहब उनको नहीं आता ना, मैं बताऊंगा। कोई कादियानी विच नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा मुफ्ती साहब उसे नहीं पता, मैं बताता एक हूँ। बंदा ना भाई ना, एक कादियानी एक और ने तहकीक करके रिसर्च करके बकौल उन्हें जरा ड्रामा रचाया है कि मैं 3 महीने पहले इस्लाम ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਹਕੀਕ ਕਰਕੇ मैंने ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਨਹੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। मुफ्ती साहब गल सुनो। हाँ भाई अजलान नबी पाक ना यार और ना बोलो यार, रंग च भंग ना पाओ एम्बुलेंस यार नाइट राइडर संभालो यार इन्हां बंदियां की मसला है। नहीं तो क्या एक बंदा फसिया हुआ उन्हें भी तितर हो जाना है। एम्बुलेंस आईयां जे इन्हू कड्ढण वास्ते आईयां जे। नहीं अजलान साहब की नहीं जाना। इन्हू बचा के ले जाना आराम से एम्बुलेंस का काम ना करें प्लीज, बात हो रही है ना, एक बंदे से यार ते माइक इन्हां दे म्यूट कर दियो ना। मेनू मैं मोटिवेटर है ना कि नहीं, मैं चेक कर नहीं, मैं कोई नहीं मोटिवेटर है ते इन्हां नू खुद म्यूट करो। फिर कौन चला रहा है, हैंडल कौन कर रहा है? नहीं म्यूट ने जो कोई बोलेगा तो नीचे उतार देंगे। अच्छा 13 वाला भी जड़ा वे इनू भी चुको ना, थल्ले ने मुंह चुकिया है बेचारे ने, हर 2 मिनट बाद बोल पैंदा जे विच, इनू भी मारो चुक के थल्ले। 13 नवाब की लिखे है, उतार दियो ला दो थल्ले ला दो। हाँ भाई अजलान तबलीग हो रही है भाई। अच्छा तबलीग अगर मैं पैदाइशी अहमदी हूँ तो क्या है मसला फिर? और छड़ हदीस तो इधर उधर नहीं जाना, आप हदीस बाई ते रहना, हदीस बाई ते रहना, बाई तो इधर नहीं होना। हाँ जी बताया तो है आपको। हाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कसम है मुझे अल्लाह की कि तुम्हारे अंदर इब्ने मरियम नाज़िल होगा। माई कसीटी दा पुत्र इब्ने कसीटी, इब्ने मरियम कैसे बन गया मुझे बता दो, ये मसला है। ये बात कसीटी कसोटी इस अल्फाज ना यूज करने मुफ्ती साहब। क्यों ना करें, कसीटी का पुत्र नहीं है, उस माँ कसीटी नहीं थी उसकी। देखिए आप तो ना कर रहे ना ऐसे, क्यों नहीं मैं क्यों ना करूं, मतलब ये कि मैं और क्या कहूं। नहीं इल्मी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। नहीं मैं परवीन दा पुत्र कह दिया, परवीन दा पुत्र क्या मिर्ज़ा कादियानी की मां परवीन थी? ये वाजह अल्फाज कसीटी। हाँ तो क्या कसीटी नहीं थी माँ उसकी? अच्छा कसीटी का पुत्र इब्ने कसीटी इब्ने मरियम बना दो, बना कैसे बताओ? मेरे सवालों को भी जवाब दें कि आपने करने क्या मेरे सवालों का भी तो जवाब दें। कौन सा सवाल किया है पहले? जैसे सवाल ने हदीस आपने पेश की है, मैंने तो नहीं की,
मैंने तो नहीं किया, मैंने किया तो मुझे बता दे। हदीस पाक ने कहा कि ये हदीस पढ़ के मैंने कादियानियत कबूल की है, ठीक है ना? ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना? जब मुकर जाओ, इट्स वन ऑफ द रीजन। ये देखो भी मुकर जाओ, मुकर जाओ। नहीं नहीं, एक दलील है इसका। इब्ने मरियम का जिक्र है, उसने नाज़िल होना था। मिर्जा कादियानी वो माइक सिटी के उस गेट से निकलता है, आपको पता है वो पैदाइश की जिक्र करता है, अपनी पैदाइश का भी जिक्र करता है कि मैं ऐसे पैदा हुआ था, मैं तमाम पैदा हुआ था, मेरे साथ मेरी जन्नत बाजी पैदा हुई थी। पहले बाजी वो माइक सिटी के गेट ऐसे खुलता है तो वहां से बरामद होती है, तो फिर जब जन्नत बीबी का गेट आगे से खुलता है तो उसके अंदर मेरा सर फंसा होता है, तो इस तौर पर मैं खातमुल औलाद ठहरा। पता है कि नहीं पता? वो तो पैदा हो रहा है माइक सिटी के वो गेट से। एक चीज यहाँ पे नाज़िल होने का जिक्र है, पैदाइश का जिक्र कोई नहीं। दूसरी बात इब्ने कसीर का जिक्र नहीं, इब्ने मरियम का जिक्र है। इन दो चीजों को मसले हल करें हल। जी मैं तादिया मेरी बारे में सवाल कर सकता हूँ? ये बता देता है। हाँ जी, ये बता देता है भाई ये कि आप कहते हैं कि जी ओके बता देता है, कुछ बता देता तो नहीं, अभी तक नहीं कुछ बताया। नहीं मानना मानो, बताया क्या मनवाया आपने? मैं मुझे मान लो भाई, मान लीजिए मैंने को क्या मनवाया? मैं तो समझा दिया आपको। ओ भाई क्या मनवाना है बताइए, वो मान लेते हम। बताइए क्या मनवाना है? कहता हूँ ना, आप उसका जवाब दे, अपने भी कीर्द साबित करें कि मेरे से सवाल करने। नहीं ये हदीस तो पहले इसको छोड़ दे, हदीस को छोड़ के ये साबित अब क्या करना है इस पे? क्या क्या हो गया? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। इस पे साबित हो गया, क्या साबित हो गया? वो मेरा साबित होगा ना, आपको फिर क्या आप अपना साबित करें। मुझे बताएं तो सही ये बताएंगे कि जी को कैसे कत्ल करना, इसलिए कैसे छोड़ेंगे। हाँ जी वो बात की बात है, अभी आपने तस्लीम के ऊपर बताया ना मैंने भाई, हदीस का पहले लफ्ज तो यही है ना, खंजीर का जिक्र बाद में है कि नहीं? है कि नहीं? मुझे नहीं पता, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब है। आपको नहीं पता, ये वो हदीस थी जिसको आपने पढ़ के समझ के तो आपने इस्लाम को छोड़ा, अब आपको पता ही नहीं है। मेरे मौक़िफ़ से ये वो हदीस है जिसके ऊपर आपने तहकीक करके रिसर्च करके इस्लाम को छोड़ा, 3 माह पहले का आपको पता ही नहीं है। मुफ्ती आप समझा रहे हैं? नहीं आप उनसे समझ नहीं है कि हमने आपसे समझ नहीं पाई, आपने 36 साल का एक धंधा छोड़ा है, वो आप समझे ना हमें। नहीं सलीब तोड़ने के लिए समझाया ना हम। सलीब बाद में तोड़ेंगे, पहले वो पैदा होने ना, नाज़िल होने पहले नाज़िल होने के पैदा होने पहले इब्ने मरियम बनाया कि इब्ने सलीब बनाया, पहले तो इस मसले में बात करें, बाद में जाएंगे। नहीं मैंने आपको लेके चलना सर। क्या लेके चलना? आपको साल लेके चलना, आप भी बता दो। सही मौजूद मनियो नहीं भाई, मेरा कोई दादा नहीं है। आने वाले की पेश हुई है ना, क्या आने वाला नाट लगाई हुई है, इस मसले का हल कर लो। आप तो नहीं कसम वाली हदीस कोई तवील नहीं होती, उसको उसके ज़ाहिर के ऊपर रखा जाएगा। आप तवील करें, सब बात सुन, इब्ने कसीर को आप तवील करके इब्ने मरियम बना रहे हैं। बात तो इब्ने कसीर इब्ने मरियम कैसे बन गया? तवील क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए। आने वाले का इंतजार कर रहे हैं, उनको बाद में करेंगे, ये फर्क है। मैं कहना इंतजार करेंगे इस मसले का हल निकालने, तवील क्यों कर रहे हैं? इब्ने कसीर के पुत्र को आप वो मरियम का पुत्र कैसे साबित कर रहे हैं? भाई मैं तो कोई तवील नहीं, आप तवील करते हैं। नहीं आप कर रहे हैं, मैं तो बताया मुझे फिर आप कसीर का पुत्र इब्ने मरियम कैसे बन गया? आप कहें कि आप तवील नहीं करते। कसीर का पुत्र इब्ने मरियम कैसे बना? मैंने आपको समझा दिया। कसीर का पुत्र इब्ने मरियम बताया तो कि इब्ने मरियम सिफाती तौर पे, क्या कौन सी सिफाती तौर पे? एक हदीस शरीफ उसके रेफरेंस में पेश तो की कैसे कौन सी? पहले इस हदीस को तो किसी किनारे पे लगाना कि नहीं? इब्ने मरियम साबित करना कि कैसे इब्ने मरियम तो साबित करना ना, क्या इब्ने मरियम साबित करना है। हाँ जी
मैंने सवाल किया था कि जो आप बात कर रहे हो क्या 1400 साल पहले कभी किसी ने की हो या खुद कादियानियों ने किसी ने की हो, ना ही आपने कोई हवाला नहीं दिया, ना ही मुसलमानों के किसी बाबे बुजुर्ग का कोई आपने हवाला दिया, ना ही कादियानियों का किसी बाबे बुजुर्ग का कोई हवाला दिया। आप अपनी तारीफ सुना रहे हैं, दो लिए बयान किए, एक ये बात में देखेंगे आपने मुझे बस देखना ही कैसे साबित कर दिया, बताइए कसीटी दा पुत्र इब्ने मरियम कैसे, हालांकि मैंने आपको बताया सच मैं बहुत बता रहा हूं, आपको 12 साल सही सच फिर मिलेगा यानी कि रिसर्च की तरीके की वो तो कहता है कि मैं इब्ने मरियम ऐसे बनाऊं कि 10 महीने का मुझे बात कर रहा हूं कि उधर की 10 महीने का मुझे हमल हुआ था खोतियों वाला। गूगल कहती है कि खोती को 10 महीने का हमल होता है। वही काम वो सब क्या कर रहे ओ यार तू एक मेरी नहीं मननी, पता नहीं किया मैं तो भाई यार तू पता नहीं चक्कर तू आना शायद मैं अपने को कोई गप मारना है रूहानी खजान जिल्द 19 सफा 50 ए वे दो ले आज और मिर्जा कादियानी कहता है कि 10 महीने का मुझे हमल हो गया है और इस तौर पर मैं इब्ने मरियम ठहरा। हां तो वो पहले लाइन पढ़े ना ऊपर से साथ पढ़े मैं कैमरा ऑन किया था फिर पढ़ोगे यहां से पढ़ना बरहीना 493 में दर्ज है, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफकी की और इस तरह के रंग में आया, अब समझ आपको? हाँ जी, यानी इस तरह के रंग में मुझे हमला ठहराया गया, इस तरह के रंग में है ये चीज, आपको समझ नहीं आ रही? पूरी बात तो पूरी पढ़ दे नहीं पूरा बात नहीं पढ़ना था, हो गया कि इस तरह क्यों इतनी क्यों क्योंकि ऐसे तो आगे पीछे से दो सफे मुझे पता है कि तुम्हारे मैंने सारी किताबें मुझे पता है, अभी तो एक बात भी नहीं पढ़ रहे हैं, पूरी बात पढ़ दो मुझे पता था, मैंने इसलिए तो कहा था कि पढ़ने चलो पूरी बात इबादत पूरी पढ़ दो, छोड़ो कौन सा मैं कह रहा हूं पूरा सफा पढ़ना है, पढ़ दे पढ़ो वो पढ़ दे जिसे दो लेना पड़ेगा नहीं काका, मैंने पढ़ तो दिया, चलो आगे पढ़ो ना, पूरा हाईलाइट इबादत पढ़ दो। 10 महीने से ज्यादा ने इस्लाम के बाद सबसे आखिर पर इन्हें सच्चा हूँ, सफा में दर्ज है मुझे मरियम से ईसा बनाया गया, पास इस तौर से मैं इब्ने मरियम ठहरा। समझ गए? मुफ्ती साहब तारा के रंग लिखा तो हुआ, फिर आप गलत बात चलो ठीक है, इस्तियार के रंग में उसको 10 महीने का मालूम हुआ ना जी, तो फिर इस्तियार के रंग में इब्ने मरियम बनना ना, हकीकी तो ना मैंने तो कहा सिफाती तो मैंने ऐसा ही है ना, मान लेते हैं तेरी बात मान लेते हैं कि फिर इस्तियार के रंग में वो इब्ने मरियम बनना ना, हकीकी तो ना ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब आ जाती है जब इस्तियार के रंग में वो बना है तो मिर्जा कादियानी ने ये वाली जो बात की थी, ये वो कहता है कि जो कसम वाली हदीस होती है उसकी कोई तवील नहीं होती, वल कसमु यदुल्लु अला अन्नल खबरा महमूलुन अला ज़ाहिरी ला तवील फीही जी, वला इस्तिस्ना। वो कहता है कसम वाली हदीस की कोई तवील नहीं होती, उसको ज़ाहिर पे रखा जाता है, आप तवील कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, ये वाली हदीस है, वो ये हदीस है। अब ये देखिए कसम वाली हदीस है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह के नबी कसम उठा के कह रहे हैं, ला युशिकन्ना अन यंज़िला फीकुम इब्नु मरियम, कि तुम्हारे अंदर इब्ने मरियम नाज़िल होंगे। तो तुम इब्ने मरियम की अब तब्दील कर रहे हो इस्तियार के रंग में, जबकि मिर्जा कादियानी ने खुद कहा है कि जो कसम वाली हदीस होती है उसकी कोई तब्दील नहीं होती, उसको ज़ाहिर अल्फाज के ऊपर रखा जाता है, ज़ाहिर पे रखा हुआ ना, इब्ने मरियम से है इसी बात। यहाँ पे कहाँ पे है इस्तियार के रंग में वो इब्ने मरियम होगा, इब्ने मरियम है सिफाती, ये क्या है? नहीं यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, इसमें कहाँ पे वो इस्तियार के रंग में इब्ने मरियम होगा, देखकर वो सिफाती है, वो अल्लाह के नबी तो कसम उठा के कह रहे हैं, यहाँ पे कहाँ पे बताया इस्तियार के रंग का जिक्र है कोई हदीस में? ओ मैं मुफ्ती साहब कह तो रहा हूँ कि है तो होता ही सिफाती है, आप समझ बताइए ना फिर हदीस के अंदर कुछ नहीं है, हदीस में तो कोई नहीं है कि इस्तियार के रंग में वो इब्ने मरियम होगा,
क्योंकि होता है वो इस्तारा के रंग। ये किसने कहा है? ये जो मैंने अल्लाह कहा। पाक कभी किसी बाबे बुजुर्ग ने, किसी मुफस्सिर ने, मुहद्दिस ने, फिकी ने, किसी आलिम ने, फाज़िल ने कभी कहा हो? गलत साबित है, हैं? गलत साबित करके दिखाएं क्या गलत साबित करके दिखाया? कि यहाँ पे इस्तारा के रंग में नहीं है। ओ यार ये तू एकदम कादियानी मर गया, तू तो बड़ा बड़ा मसीह मौत बन गया ये हो डागी हो तुसी, डागी हो। यार करें बात, साहिल करो बात भाई। नहीं बस मुफ्ती साहब ये इसी तरह का वैसे ही करता है, ये पैदाइशी कर देनी है सही कह रहे हैं जाहिल और यहाँ तो कोई बंदे को कोई थोड़ा बहुत इल्म भी हो ना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फारिग नवाब के नाम से वो कहता है मेरे पास इल्म है, उससे बात करने। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। जी जी ठीक, मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब या बोलो साहब मेरे यहाँ नीचे उतर गए। नहीं मुफ्ती साहब लाइटर भाई एक मिनट ना समझने की कोशिश कर रहा हूं, ना समझने की क्या बोल दे प्लीज। लाइटर भाई ये एक आईडी है नवाब के नाम से, प्राइवेट उठा लिया। नवाब के नाम से जी जी वो कह रहा है मैंने भी बात करनी है मुफ्ती साहब, अल्लाह खैर करे। ਉਹ 13-14 ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਨਵਾਬ। कॉल करें क्योंकि कॉल के बगैर नहीं उठा सकते। चलो कादियानी वाला है, पहले बड़ी खप हुई थी यार। वो साइड चला गया, वो चला गया। चला गया ਵਿੱਚ ਟਾਉਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਟਾਉਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਵਾ ਟੈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਨਾ ਹੁਣ ये आईडी नहीं है, इनसे पूछिए। जी बरकत साहब कैसे? बरकत बीबी बोले जी। हेलो जी, कौन है आप? बाजी हैं कि आप भाई हैं? कौन है भाई? बोले तो सही। बरकत बाबा साहब माइक म्यूट करें। अच्छा बाबा, वो एक बरकत बीबी थी ना जो मेरे कादियानी से खेल यार रही है। ये फोन करने लगा, नीचे उतार दिया उसने। मैं तो वही समझा था शायद वही बरकत बीबी आ गई है वापस, जो मेरे कादियानी से खेल ले लेती थी। कोई नहीं है ये भाई अली भाई अस्सलाम वालेकुम तारुफ कर रहे थे। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या लिखा? आलिया लिखा है? क्या लिखा है? अली अली नाम है मेरा। ये ऊपर तो आलिया लिखा है। चले करें बात। मुफ्ती साहब मैं थोड़ी सी सुन रहा था इत्तफाकन आपकी बातचीत। क्या हमें इस्लाम में, मैं माजरत के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि वो गलती हो कम बेशी हो तो अल्लाह पाक माफ़ करे, आप प्लीज़ दुरुस्ती कर दीजिए मेरी इस बात को। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस तरह की बहस करने से मना किया है कि नहीं जो हम कर रहे हैं? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है तो बता दे। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि आप खातमुन नबी हैं, राइट? तो अगर कोई इस चीज़ का दावा कर रहा है तो हमें उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। ये आप मशवरा दे रहे हैं या आप अल्लाह नबी की बात कोई सुना रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, राइट? नहीं, ये आप पहले तो ये फैसला कर दे, आप मशवरा में दे रहे हैं या अल्लाह रसूल की बात सुना रहे हैं? जी जी मैं यही मशवरा दे रहा हूँ। मुझे माजरत के साथ आप बेशक बहुत आला दर्जे पे हैं, हम बहुत खासर हम कुछ नहीं, बट मुझे सुन के अच्छा नहीं लग रहा कि हम इन लोगों के साथ बहस क्यों करें, इन लोगों को दलील क्यों दें जब ये है ही गलत। आपका मशवरा आपने दे दिया, अच्छा मैं कब कह रहा हूँ आपने कोई बुरा मशवरा दिया? जी तो इंशाल्लाह इसके ऊपर गौर व फिक्र करती हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरी मालूमात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहस से मना फरमाया गया है। मेरे इल्म में नहीं, आपने कोई किसी हदीस से पढ़ा है तो बता दें। जी मैंने किसी हदीस में पढ़ा था, लेकिन आप मुझसे हवाला मांगेंगे तो
मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मिल जाएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। बस जब हवाला देंगे ना तो जी जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा मशवरा दिया। आ जाओ भाई, कोई और आ जाओ भाई, कोई मशवरा देना है। भाई आपकी आईडी उठा रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। नवाब उस वक्त उससे बड़ी सोच पड़ रही, किधर गया वो? सारे पुलिस बन के आया था उसके लिए। बार बीच में बार बोल रहा है टोक करके। सीधी सी बात है, मिर्जा कादियानी वो एक छोटा सा सवाल किया तो कह रहा मैं हदीस पढ़ के, ये वाली हदीस थी कसम वाली हदीस, उसको पढ़ के पहले तो तुम्हारे पास तो लिंक ही हवाला ही नहीं था, वो हवाला भी मैंने दिया तुम्हें, बात तुमने खुद शुरू की, उसके ऊपर पूरे ही नहीं कर रहे तुम। उसमें तो पहली बात ही है कि वो इब्ने मरियम होगा, आसमान से नाज़िल होगा, तो तुम वो कसीदे दे पुत्र वो जड़ा वो तमाम पैदा है तो उसी वो मसीह होगी जन्नत ऊपर से भी लेकर रहे। ये बरकत बाबा की आईडी बैठी है बाहर, एक आलिम भाई आपको मैं बताने लगा हूं। बरकत साहब को बात करनी है भाई, कर ले। बरकत बाबा साहब इन्होंने तो फोटो मारना है। नहीं सर, चले बैठे रहे, रिपोर्ट मारेंगे मुफ्ती साहब, 10 तो आईडी है, कितनी मारेंगे? और घर से नई आईडी निकलेगी तो कितनी आईडी हमारा? हर घर से एक और निकलेगा। ठीक यार, बस फिर मैं भाई जी जावा, फिर कोई नहीं, फिर तबलीग किसने करनी? बस ओए मैं कादियानियों आखिरी पैगाम दे के जा रहा हूँ। मेरा पुत्र तुम्हारा मिर्जा कादियानी भी उठ के वो कब्र से आ जाए ना, तो वो भी अपने दावे को साबित नहीं कर सकता। ये तो रोला था उसके साथ कि वो जो दावे करता था उसका कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं, कोई कुछ भी नहीं, वो है ही नहीं, कुछ भी नहीं, बक 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 का तो कोई इलाज नहीं है ना, कोई जान नहीं उसके दावे के अंदर, कोई मतलब कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं, कुछ भी नहीं, सिवाय बक बक के तो है ही कुछ नहीं। तो बक बक का क्या जवाब दिया जाए? तो तुम्हारे अंदर कुछ नहीं, तुम्हारे मिर्जा मसरूर के पास कुछ नहीं, बेचारे को ऊपर से लेके उर्दू तक नहीं पढ़नी आती, तो तुम उसके बच्चे बचूले, तुम लोग तो है शायद कोई जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुफ्ती साहब क्या हाल है? शुक्र है। मैं वैसे जाने लगा था सिद्धू भाई कोई जरूरी बात करनी है तो कर लेने, तो मैं आखिरी मेरी गुफ्तगू थी, मैं जाने लगा था। मुफ्ती साहब मेरे से कोई है आपकी बात हो गई जानते हैं कुछ? नहीं, मुफ्ती साहब मुझे जानते हैं, आप जानते हैं मुझे? शायद वो ही आप जो आमिर नजीर भाई की ब्रांड के ऊपर पता नहीं पहले कादियानी थे, बाद में मुसलमानों में कोई इस तरह का कोई था शायद वो? नहीं मुफ्ती साहब, मैं आमिर नजीर साहब के साथ तो भी बैठे नहीं किसी बात। अच्छा, फिर आप कोई और होंगे, ठीक हो, ये फरमाएं, कोई करनी है बात तो कर लें। नहीं, आपने पहले ही तैयार डाल दी, मैं जानने लगा तो मैंने कहा ठीक है। नहीं कोई भाई कोई है जरूरी बात कर ले। आप क्या अहमदी हैं? मुफ्ती साहब चले जाए अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अहमदी हैं, ठीक है। तो कोई तबलीग जाते जाते कोई तबलीग करते, एक मुहम्मदी हल कर दें आप, छोटा सा एक। जी मुफ्ती साहब 2-3 हल करवा लेंगे, एक तो ये थोड़ा सा। अच्छा ये था एक कि वो कसीटी का पुत्र इब्ने कसीटी इब्ने मरियम कैसे बन गया? वो मिर्जा कादियानी कहता है इब्ने मरियम मैं इस तरीके से बना हूं कि मुझे खोतियों वाला पहले 10 महीने का हमल हुआ है, तो बाद में मैं इब्ने मरियम बना। ये थोड़ा सा एक मसला बन गया। मुफ्ती साहब ये आपके लिए मसला बना हुआ है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए मसला बना? नहीं मेरे लिए मैं उम्मत का ठेका तो नहीं लिया, मेरे लिए। अभी बात हो रही थी एक जगह, तो वो मुनाजरा उम्मत मुसलमान से तो नहीं हो रहा था, मेरे साथ ही हो रहा था ना। तो मुफ्ती साहब आपको इस मसले का हल फौरन चाहिए, फौरन अफाका फौरी कम फौरी करीदा है।
ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿਓ करते हैं या ਡਾਕਟਰ ਸਾਇੰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇੱਥੇ मुफ्ती साहब ये जो आप मुनाजरे करते हैं आप उम्मत मुस्लिमा के लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਯਾਰ तो ये आपसे मुफ्ती साहब ये भी एक मिनट मुफ्ती साहब ये ਖਾਨ जो ਸਾਹਿਬ बात है ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਸਲ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ मुफ्ती साहब ये भी जो है तो लौरी ਯਾ ਹੋਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਹੋਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ मेरे को ਜਿਹੜੀ रिकॉर्डिंग हो गई है ना 1.5 घंटे की हो गई है 1.5 घंटे से मुसलसल बोल रहा हूँ आपके सामने ही है तो मुझे ज्यादा दो यार हैं आप आ गया नीचे फिर उसको लेना चलो जी रब रखा जी अस्सलाम वालेकुम ओके मुफ्ती साहब ओके ओ मुफ्ती साहब एक सेकंड मुफ्ती साहब वो नवाब आ गया है एक सेकंड यार आप लोग सारे भाई जरा एक सीट दे मुफ्ती साहब को जरा ले फिर दोबारा काम करो नवाब आ गया नहीं जगह है नहीं नवाब की नहीं हिम्मत ऊपर आने की नहीं मुफ्ती साहब को दोबारा कॉल पे नहीं कर ले आप देखें अगर मुफ्ती साहब है नहीं इसने नहीं वो नवाब वैसे ही वो बात ही कर तब भी वो किसी के बीच में ही बोल रहा था इतने जोगा नहीं खुद है चले इसको ले नाइट राइडर भाई काइंडली जरा इसको ले नवाब को नहीं नवाब में इतनी हिम्मत ही नहीं बस दरमियान में ही उसने बोलना था